Hello students, in this video I'll be taking revision for an introduction to banking and insurance. Starting with module 1. These are the topics I've covered in module 1. Introduction to bank, origin, definition, classification of banks, structure, overview of RBI Act, Banking Regulation Act and recent trends in banking. Topic is bank origin. It has been divided into three phases, phase 1, 2 and 3. So phase 1 was the early phase from 1770 to 1969. Second phase started from 1969 and it was till 1991. Formation of SBI took place in 1955 and 14 other banks it got nationalized in the duration of 1969 to 1991. And in phase 3, liberalization or the banking sector reform phase, it began in 1991 and it is continuing till date. You can go through this evolution of banking, pre-independence and post-independence. So in pre-independence, you can see Commercial Bank, then Punjab National Bank and so many other banks were there. In post-independence, nationalization of banks took place. Imperial Bank of India, it was brought up under public ownership in 1955 and it was converted to SBI. Then the formation of SBI Group and emergence of new private sector banks took place in 1993. Talk about pre-independence period. So in British rule, East India Company ने 3 बैंक स्टैब्लिश किए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास. इन तीनों को मिलाकर के प्रेसिडेंशियल बैंक्स बोलते हैं और फर्दर ये तीनों मर्ज हो गए 1921 में एक सिंगल बैंक में जिसको हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं. फर्दर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ 1955 में और ये SBI बन गया. आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में ये समझना है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945 के अंडर बहुत सारे बैंक्स नेशनलाइज हुए एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का सबसे बड़ा जो फॉर्मेशन था वो SBI का फॉर्मेशन था. 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए 1969 से 1991 में. So we have completed origin part. Let us move to the meaning. If a question comes that what is the definition of bank, what you have to write bank is a financial institution. वो एक financial institution है and then इसके दो functions आपको लिखने हैं, which accepts deposits for the purpose of lending money. तो इतनी simple सी definition आपको लिखनी है. Bank is a financial institution which accepts deposits for the purpose of lending money. Rest सारी details आप पढ़ सकते हो इसमें. बैंक जो है एक्सेस मनी लेता है एंड जिसको नीड होती है, जो बोरोअर होते हैं उनको देता है. तो डिपॉजिट पर बैंक कम इंटरेस्ट पे करता है लेकिन जो वो देता है, लोन देता है, उस पर वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको ही हम नेट इंटरेस्ट स्प्रेड बोलते हैं और यही बैंक की इनकम होती है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स. तो यहाँ पर आप 4 कैटेगरीज देख सकते हैं: कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट एंड कोऑपरेटिव. Read all of them one by one. First is commercial bank. It has been divided into 4 parts: public sector banks, private sector banks, foreign banks and regional rural banks. पब्लिक सेक्टर में मेजर स्टेक गवर्नमेंट के पास रहेगा, प्राइवेट में मेजर स्टेक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास रहेगा. फॉरेन बैंक्स वो बैंक होते हैं जिनका एक कंट्री में हेडक्वार्टर है और अलग अलग कंट्रीज में उसके ब्रांचेस होते हैं. एंड RRBs ये रीजनल लेवल पर बैंक्स होते हैं जो रूरल एरियाज में ऑपरेट करते हैं एंड क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं रूरल सेक्टर्स को या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर्स को. इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं: पब्लिक सेक्टर SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा. फॉरेन बैंक सिटी बैंक, HSBC, Standard Chartered. Then private sector bank ICICI Bank, HDFC, Axis. Regional rural banks Andhra Pradesh Gramin Vikas Bank, Assam Gramin Vikas Bank, etc. Next category is small finance bank. ये एक नए तरह का बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, माइक्रो बिजनेस को. एग्जाम्पल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सेट्रा. देन पेमेंट बैंक अभी एक नया मॉडल जो आजकल ट्रेंड चल रहा है पेमेंट बैंक्स का वो है एंड RBI ने भी इसको एक्सेप्ट किया है. ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं बट ये लोन या क्रेडिट अभी नहीं देते. एग्जाम्पल एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एक्सेट्रा.
And the fourth category is cooperative banks. It has been divided into two parts, urban cooperative and state cooperative. अर्बन कोऑपरेटिव जो अर्बन एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में है, लाइक सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये स्टेट वाइज है, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, एक्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो अभी अगर आप ये देखते हो स्ट्रक्चर, आरबीआई जो है हमारा दो पार्ट में क्लासिफाइड है, स्केड्यूल्ड, नॉन स्केड्यूल्ड। देन स्केड्यूल्ड में कमर्शियल कोऑपरेटिव जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी आपको, मैं सिर्फ स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल बैंक्स क्या होते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। रेस्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में कवर कर लिया है, आपको सेम पढ़ना है। Let us understand what are scheduled banks. So these banks are covered under the second schedule of RBI Act 1934. तो ये second schedule आपको याद रखना है. So to qualify as a scheduled bank, the bank should confirm the following conditions. Paid up capital 5 lakh के ऊपर होनी चाहिए. Then bank requires to satisfy the central bank that its affairs are not carried out in a way that cause harm to the interest of the depositors. जो depositors हैं उनके इंटरेस्ट को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा रही है बैंक, ये सेटिस्फैक्शन किसको मिलना चाहिए? सेंट्रल बैंक को मिलना चाहिए। किसकी तरफ से मिलना चाहिए? वो कमर्शियल बैंक के या वो स्केड्यूल्ड बैंक की तरफ से मिलना चाहिए। अ बैंक शुड बी अ कॉर्पोरेशन रादर देन सोल प्रोप्रीटर और पार्टनरशिप फॉर्म। तो बैंक जो है कंपनी के फॉर्म में होनी चाहिए, सोल प्रोप्रीटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। एंड नॉन स्केड्यूल्ड बैंक जो ऊपर के स्केड्यूल कैटेगरीज को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वो जो है आपके नॉन स्केड्यूल्ड बैंक होते हैं। ये लोकल एरिया बैंक होते हैं जो सेकंड स्केड्यूल में लिस्टेड नहीं होते हैं, किसके? आरबीआई के। और इनको सीआरआर खुद के साथ मेंटेन करना है, आरबीआई के साथ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। Next topic is overview of RBI Act 1934, or you can get overview of RBI as well. You can read it like that also. ये जो आरबीआई है ये सेंट्रल बैंक है। कब बना? अप्रैल 1 1935 को बना। कैसे बना? प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो ये ईयर्स आपको याद रखने हैं। सेंट्रल ऑफिस किधर है? अपने मुंबई में है। नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में हुआ। आरबीआई जो है किसका बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक है। जब इनॉग्रेट हुआ था तो शेयर कैपिटल कितना था? 5 करोड़ था। डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप। नेक्स्ट आप जो है ये देख सकते हो इसके मेन फंक्शन, इसकी नीड क्या थी? टू रेगुलेट द इश्यूज ऑफ बैंक नोट। बैंक नोट कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करती है। रिजर्व कौन मेंटेन करता है? ताकि हमारी मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, वो आरबीआई करती है। एंड देन क्रेडिट और करेंसी सिस्टम हमारे कंट्री का ऑपरेट करना, ये भी किसका काम है? आरबीआई का काम है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी था कि आरबीआई एक्ट में आना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो बैंक ऑफ इशू, यहाँ पर जितने भी पॉलिसीज बनेंगे वो सब मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की। और फिर ये भी देखना है कि वो सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेटर और सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, ये भी आरबीआई देखती है। देन इशूअर ऑफ करेंसी, करेंसी मार्केट में इशू करने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। So there are various development functions which RBI performs, such as maintaining good public relations. Further, control of credit, RBI controls credit. अभी जो है आप देखो जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्केड्यूल्ड बैंक्स, उनको कैश रिजर्व मेंटेन करना होता है आरबीआई के साथ। सेकेंडली, कितना जो है लोन मार्केट में जाना चाहिए, कितना पैसा जो है जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, इसको भी कंट्रोल करती है आरबीआई थ्रू क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव कंट्रोल्स। Then it controls the banking system through the system of licensing, inspection and calling for information. किसको लाइसेंस देना है, नहीं देना है, कब इंस्पेक्शन होना चाहिए, कब इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ये सारी चीजें भी आरबीआई कंट्रोल करती है। एंड लास्टली आप ये देखो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जिधर कभी भी अगर किसी भी बैंक को प्रॉब्लम आ रही है तो वो आरबीआई के पास जाकर के वहां से लोन ले सकता है एंड अपने काम को कर सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये एक्ट 1949 में आया, ये ईयर आपको याद रखना है। ये हर जगह एप्लीकेबल है, जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। देन आप नेक्स्ट इसमें देख सकते हो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
के थ्रू जो है बैंक प्रॉपरली काम कर रहे हैं, उसके परव्यू में रह करके काम कर रही हैं। एंड इन 2020 एक अमेंडमेंट आया, पहले कोऑपरेटिव बैंक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं थे, बट अभी जो है कोऑपरेटिव बैंक्स भी सुपरविजन में आ गए आरबीआई के आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2020। एंड रेस्ट चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आप जो है रीड आउट कर लेना। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, कट कंपटीशन अमंग बैंक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एंड प्रोवाइड कंपल्सरी अमलगमेशन टू वीकर बैंक्स। तो ये पॉइंटर्स आप ध्यान में रखना। These are recent banking trends, you can go through it. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अभी जो है मोबाइल बैंकिंग एप्स, इंटरनेट बैंकिंग, चैटबॉट्स एंड अदर डिजिटल चैनल्स फॉर बैंकिंग सर्विसेज, ये जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। देन फिनटेक कोलैबोरेशन, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिटिक्स। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वो इम्प्रूव होंगे, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा एंड प्रोसेस को हम स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। देन एम्फेसिस ऑन रिटेल बैंकिंग, अभी जो है एप्स के थ्रू हम पर्सनलाइज सर्विसेज गेन कर सकते हैं। हम इजीली जो है क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मोबाइल ऐप है मेरे पास, मुझे एक एफडी ओपन करना है, तो मुझे फॉर्म नहीं जा करके कलेक्ट करना है, मुझे उसको फिल नहीं करना है, मुझे किसी से पूछना नहीं है, मैं डायरेक्टली मेरे फोन के थ्रू ये काम कर सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई है अभी के बैंकिंग स्ट्रक्चर में। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो अभी आरबीआई ये कोशिश कर रही है कि सबको इंक्लूड कर पाए, चाहे वो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको भी वो इंक्लूड कर पाए। लाइक जन धन योजना जैसे ये स्कीम आई, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया। कंसोलिडेशन एंड मर्जर, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपस में मर्ज हुए इन द ईयर 2020। अभी जो है ये जिनके पास कैपिटल कम थी उनको क्लब कर दिया, ताकि वो एक लार्ज बैंक बन करके अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर पाए, अपने सारे फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर सके। देन रेगुलेटरी चेंजेस, तो ऐसे रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बैंक्रप्सी कोड, बेसल 3 नॉर्म्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज। तो ये सारी चीजें भी ये आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि अभी जो बैंक के क्लर्क हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है कि एक एक के लिए मैनुअली वर्क करना है, अभी उनको सिर्फ ऑनलाइन उनको गाइड करना है। तो इसकी वजह से उनके पास बहुत सारी चीजें करने के लिए एक्स्ट्रा भी टाइम है एंड वो एफर्ट्स डाल सकते हैं। देन फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी, तो अभी देखो आप, जो कि हम सारे ट्रांजैक्शंस अभी अपने फोन से करने लगे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आजकल साइबर सिक्योरिटी से हमारे डेटा प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। एंड सस्टेनेबल बैंकिंग, तो अभी पेपरलेस बैंकिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं, हमें जो है सारी चीजें डिजिटली रिकॉर्ड करने की आदत हो चुकी है, इवन हम पासबुक भी अभी प्रिंट कराने नहीं जाते। तो इससे क्या है, पेपर कॉस्टिंग वगैरह एंड बाकी चीजें वो बहुत ज्यादा हमारी सेव होने लगी है। So we have completed our module 1. Let us start with module 2, that is functions of bank. These are the topics which we are going to cover in module 2, functions of bank, types of loans and advances, then principles of lending, priority sector lending, execution of standing instructions, electronic clearing system, very important, working of ECS, financial inclusion, role of mobile apps for banking transactions, and customer grievances and redressal, ombudsman. Let us start with the functions of bank. There are two types of functions of bank. First is primary and then secondary. तो primary को हम banking functions भी बोलते हैं। Primary functions दो तरह के हैं, accepting deposits and second one is granting of loans and advances. Let us understand the concept of accepting deposits, and here itself I am explaining you different types of deposits. So commercial banks is mobilizing public fund, providing safe custody of savings and interest on the savings to depositors. अभी क्या है, बैंक हमें ये बोलती है कि आप जो है अकाउंट में पैसा रखो जिस पर आप इंटरेस्ट अर्न कर पाओगे। आप अगर कैश के फॉर्म में पैसा रखोगे उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइप ऑफ डिपॉजिट इज सेविंग डिपॉजिट। तो इसमें जो है लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप अपनी सेविंग हैबिट्स को बढ़ाओ एंड
अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखो। दो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, बट आपको एटलीस्ट इंटरेस्ट तो मिल रहा है। अगर आप कैश के फॉर्म में रखोगे तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ बैंक जो है, कुछ बैंक में ऐसा है कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, बट कुछ बैंक में ऐसा है कि जीरो बैलेंस अकाउंट भी अगर आपने उसके अंडर खुलवाया है अकाउंट, तो आपको कुछ भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बैंक आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड दैट इज, आजकल क्रेडिट कार्ड, चेक बुक, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिपॉजिट इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। आप एफडी के नाम से आपने सुना होगा, इसको हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, और इसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है, मे बी अ वीक, मंथ और अ ईयर। डेज वाइज भी होता है, 364 डेज, 180 डेज एंड सो ऑन। इसमें अगर आप पहले विड्रॉ कर लोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एंड अगर आप मेच्योरिटी पर विड्रॉ करते हो पैसे तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आप लमसम अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, आप उसको वापस से इन्वेस्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज करंट डिपॉजिट। ये बिजनेसमैन ओपन कराते हैं। इन अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज भी होती हैं कि अगर मान लो कि मुझे फंड कम पड़ गया और मुझे किसी को अर्जेंट पेमेंट करनी है, तो मैं मेरे बैंक से जो है एक्स्ट्रा एक लोन टाइप का अमाउंट ले सकती हूँ, एंड वो लोन लेकर के मैं मेरी पेमेंट कंप्लीट कर सकती हूँ। फर्दर जब लौटाना होगा तो मैं लौटा दूंगी, एंड बैंक इस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिपॉजिट इज रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग का मतलब ये होता है रीअकर, जो बार बार हम करेंगे। सपोज मैंने मंथली जो है मेरे बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए कि 500 रुपए जो है इस मेरे अकाउंट से, मेरे सेविंग अकाउंट से आप डिडक्ट करो और मेरे आरडी अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। तो बैंक हर मंथ क्या करेगा, वो 500 रुपीज डिडक्ट करेगा और मेरे आरडी अकाउंट में एक्यूमुलेट करते जाएगा। फर्स्ट मंथ 500 पर इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड मंथ 500 प्लस 500, अभी 1000 अमाउंट हो गया मेरा, तो 1000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। तो लोन्स देते हैं बैंक, एडवांसेस देते हैं लोगों को, एंड दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। फर्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये करंट अकाउंट होल्डर्स को ही मिलता है। इट इज अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी। पढ़ा था बैंक ओवरड्राफ्ट। सेकंड हम पढ़ रहे हैं कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जिनका बैंक अकाउंट नहीं है उनको भी मिल सकता है। लाइक आपका बैंक ओवरड्राफ्ट सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को मिल रहा था, लेकिन कैश क्रेडिट किसी और को भी मिल सकता है जिनका अकाउंट नहीं है। उनको क्या करना है, उनको जो है बैंक को कुछ गिरवी रखना है, कुछ गिरवी रख करके उसके अगेंस्ट वो बैंक से लोन ले सकते हैं। देन लोन ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, से 1 to 5 years अगेंस्ट एनी टैंजिबल असेट्स। तो आप किसी चीज को रख करके उसके अगेंस्ट, कुछ गिरवी रख करके, कुछ मॉर्टगेज करके उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, एंड आप जो है इसको लमसम में या फिर ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अगर आपके पास बिल है तो वो बिल ले जा करके आप क्या कर सकते हो, बैंक को दे सकते हो। बैंक उसके अगेंस्ट क्या करेगी, आपको अमाउंट दे देगी। बैंक अपना कुछ कमीशन काट लेती है उसमें से, जिसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं, एंड रिमेनिंग अमाउंट वो आपको दे देती है। फर्दर मूविंग टू सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक। तो एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन वो आपके एजेंट की तरह आपका काम करेगा, आपका फंड ट्रांसफर करेगा, पीरियोडिक कलेक्शंस, अगर आपकी सैलरी आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, पेंशन आ रहा है, या कुछ भी ऐसा मंथली बेसिस पर या टाइमली बेसिस पर कुछ भी अमाउंट आ रहा है, वो कलेक्ट करेगा। एंड अगर आपने उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे के रखे हैं कि इतना रेंट पे करना है, इतना इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो मेरे बिहाफ पे तुम कर देना, तो ये फंक्शन, ये पेमेंट भी बैंक करके देगा। Many other agency functions like collection of checks, बैंक आपके बिहाफ पे आपका चेक कलेक्ट करेगा, उसको क्लियर कर देगा। देन आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेगा। लाइक अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन कर लेगा। अगर आप कुछ शेयर्स परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उसका भी वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा। एंड अदर एजेंसी फंक्शंस लाइक एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर, एडवाइजर, एक्सेट्रा। These are various utility functions of the bank. तो utility मतलब use. So issuing letters of credit, travelers check, अगर आपको letter of credit चाहिए, travelers check चाहिए, तो वो बैंक आपको बना के देगा। आपको जो है लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। देन
फॉरेन एक्सचेंज अगर आपको चाहिए तो आपकी करेंसी कन्वर्ट करके आपको देगा, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर द कंपनीज जो आईपीओ लेकर के आ रहे हैं, अगर वो ये डिमांड करते हैं कि नहीं आप अंडरराइटर बन जाओ तो बैंक उनके लिए अंडरराइटिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेगा। देन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, अलग अलग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड स्टैंडिंग गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स, जो भी कस्टमर या क्लाइंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देंगे उसको भी बैंक फॉलो करेगा। These are various types of loans and advances: personal loan, credit card loan, home loan, vehicle loan, small business, payday, cash, होम रेनोवेशन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन। तो ये सारे लोन्स आप अलग अलग फॉर्म में बैंक से ले सकते हैं। Principles of lending. First is liquidity. So bank lend for short periods only because they lend public money which can be withdrawn at any time by depositors. मान लो मैंने पैसे डिपॉजिट किए थे एंड मैं कभी भी विड्रॉ कर सकती हूँ, तो ये वाली अमाउंट बैंक हमेशा क्या करती है, वो लेंड करती है, तो हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए वो लेंड करती है। देन सेफ्टी, सेफ्टी मीन्स दैट द बोरोवर शुड बी एबल टू रीपे द लोन एंड इंटरेस्ट इन टाइम एट रेगुलर इंटरवल्स विदाउट डिफॉल्ट। तो जब भी बैंक लोन देती है तो वो एक सेफ्टी भी देखती है कि जो बोरोवर है वो रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देन डाइवर्सिटी, so it should not invest its surplus funds in a particular type of security but in different types of securities. तो बैंक जब lend करता है किसी institution को, किसी company को, तो वो उस particular company की किसी एक security में invest नहीं करता है, वो अलग अलग securities में invest करता है। Then stability, bank's investment policy should be to invest in those stocks and securities which possess a high degree of stability in their price. तो बहुत ज़्यादा high अर्न करने के लिए बैंक रिस्क बहुत ज्यादा नहीं उठाता, वो क्या करता है, ऐसे फंड्स देखता है जहां पर स्टेबिलिटी है रीपेमेंट की एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो बैंक जब तक सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तब तक जो है वो आपको इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा आपके डिपॉजिट्स पर, इसलिए वो प्रॉफिटेबिलिटी पर काम करता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता क्या है, एक अकाउंट होल्डर वो अपने बैंक को बोलता है कि तुम्हें ये पर्टिकुलर टाइम पर, ये रेगुलर इंटरवल पर दूसरे अकाउंट में पेमेंट करना है। वो कुछ भी हो सकता है, मेरा रेंट भी हो सकता है, बच्चों की फीस भी हो सकती है, या कोई ईएमआई भी हो सकता है। रेस्ट आप जो है पढ़ सकते हो, जैसे हम लोन बिल या क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं एंड अदर थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिसके थ्रू एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो। So it is a method of fund transfer from one bank account to another. It is generally used for bulk transfers performed by institutions for making payments like dividend, interest, salary, pension, etc. So ECS can also be used to pay bills and other charges such as payments to utility companies such as telephone, electricity, water, or for making equated monthly installment payments means EMIs on loan as well as SIP investment। तो इन सारी चीजों के लिए ECS का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ ECS। अगर आपको ECS क्रेडिट की फैसिलिटी अवेल करनी है तो आपको जिसके भी अकाउंट में पैसे क्रेडिट कराने हैं उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी बैंक में, सारी डिटेल्स जैसे कि अकाउंट नंबर, नेम, बैंक नेम, IFSC कोड, ब्रांच नेम, स्केड्यूल्ड पेमेंट डेट एक्सेट्रा, ये सारा कुछ आपको अपनी बैंक को देना है। फिर बैंक क्या करेगी, जो ड्यू डेट रहेगी या स्केड्यूल्ड पेमेंट डेट रहेगी वहां पर उस दिन आपके अकाउंट से पैसे को डेबिट करेगी एंड दूसरे बैंक को, जो डेस्टिनेशन बैंक है सामने वाले का बैंक, उसको ट्रांसफर कर देगी। फिर उसका बैंक क्या करेगा, वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा उस अमाउंट को। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है इंक्लूड करना फाइनेंशियल बेनिफिट्स में। तो जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, उनके साथ कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं हो एंड उनको भी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में इंक्लूड किया जाए,
ये मेन मोटिव होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का. इट प्राइमरली एम्स टू इंक्लूड एवरीबॉडी इन द सोसाइटी बाय गिविंग देम बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट लुकिंग एट अ पर्सन्स इनकम और सेविंग. तो मेरी इनकम कितनी है उसके इररेस्पेक्टिव, सामने वाले की इनकम कितनी है उसके इररेस्पेक्टिव, वो क्या करते हैं, सबको बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. Then financial inclusion chiefly focus on providing reliable financial solutions to the economically unprivileged sections of the society and by furnishing them the solutions for the required bank documents and have access to apply for government sanctioned documents ताकि जो है वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को भी अवेल कर सकें. Then objectives आप देखो, it intends to help people secure financial services such as deposits, fund transfer services, loans, insurance, payment services, etc. Next, it aims to establish proper financial institutions to cater to the needs of the poor people. तो गरीबों की मदद के लिए एक proper financial institutions बनाना. Then it aims to build and maintain financial sustainability so that the less fortunate people having a certainty of funds which they struggle to have. तो अभी जो है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी उनको भी जो जिनको पहले बेटर फैसिलिटीज, जिनको कुछ भी फैसिलिटीज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी. Further, it intends to increase awareness about the benefits of financial services among the economically underprivileged sections of the society. तो जो underprivileged sections हैं society के, उनमें भी awareness create करना, financial awareness, financial literacy create करना, mobile banking बताना उनको बाकी के other financial services के बारे में aware कराना. Then tailor made and custom made financial solutions उनको provide कराना, उनके फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंगली, उनके प्रेफरेंस, उनके इनकम लेवल के अकॉर्डिंगली. एंड देयर आर मेनी गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर डेडिकेटेड टू ब्रिंगिंग इन फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो ये एजेंसीज क्या करती हैं, ये लोगों को अवेयर कराती हैं, उनको गाइड करती हैं ताकि उनको भी एक फाइनेंशियल कंडीशन के लिए इंक्लूसिविटी मिल पाए हमारी कंट्री में. You all are well aware about this topic, that is role of mobile apps for mobile banking transactions. तो अभी आप देखते ही होंगे, इवन डेली लाइफ में आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते होगे, जीपे करते हो, इवन मोबाइल के जो अलग अलग बैंक्स के मोबाइल ऐप हैं उनके थ्रू एफडी आरडी ओपन कर सकते हो. इवन अगर आपकी चेकबुक खत्म हो गई है तो आप वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आपके घर पे चेकबुक डिलीवर हो जाएगी. तो बहुत सारी चीजें हैं. तो कुछ पॉपुलर ट्रांसफॉर्मेशंस हम देख लेते हैं. कैशलेस पेमेंट, तो अभी हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते हैं. ओपन बैंकिंग है. देन वॉइस पेमेंट्स, अगर हम आईफोन में बात करें तो सीरी को अगर हम गाइड करें तो वो हमारे कमांड पे हमारे बिल्स पेमेंट कर देगी. देन चैटबॉट की फैसिलिटीज अवेलेबल है, हम चैट करके अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं. इवन हम जो है अपने मोबाइल बैंकिंग एप्स के थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं कि कितना सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. फर्दर एडवांस सिक्योरिटी भी है. अभी हमारे फिंगरप्रिंट, हमारे फेशियल रिकॉग्निशन के बिना हमारा ऐप खुलेगा नहीं, हमारे पिन के बिना हमारा ऐप नहीं खुलेगा. एंड जब तक हम ओटीपी नहीं रखते या फिर पिन नहीं डालते तब तक जो है हमारे बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं होंगे. देन जीपीएस का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट ब्रांच में ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैश अवेलेबल है कि नहीं है. Last topic of this module is customer grievance and redressal ombudsman. तो बैंकिंग ombudsman, ये आरबीआई ने जो है कंज्यूमर्स की क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए ये चीज शुरू की. पहले ये 1995 में लॉन्च हो चुकी थी, बट 2006 में ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन में भी आ गई. तो अभी जो है ये उस समय से बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 के नाम से जाना जाता है. And according to RBI, this scheme provides a resolution for concerns and complaints on banking services. अगर आप किसी भी बैंक के सर्विसेज से परेशान हो तो आप जो है इधर कंप्लेन फाइल कर सकते हो. So RBI has established a total of 15 banking ombudsman offices located mostly in state capitals.
So these are the complaint areas: deposit, remittance account, then loans and advances से related, then deficiencies arising out of internet banking, and फिर मिस सेलिंग एंड मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. अगर इन एरियाज, ये मेजर एरियाज हैं, अगर इससे भी रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंप्लेन है जो आप फाइल करना चाहते हो, तो आप इधर कर सकते हो. किधर? ओम्बड्समैन में. आप किन सर्कमस्टेंसेस में बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते? फर्स्ट इज, अगर आपने अपने बैंक के साथ डील नहीं किया, उनको अपने ग्रीवेंस के बारे में नहीं बताया और आप डायरेक्टली ओम्बड्समैन के पास बड़े दरबार में सीधे जाओगे छोटे दरबार में जाने के पहले, तो वो नहीं सुनेंगे. आपको पहले अपने बैंक के साथ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है. अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप ओम्बड्समैन के पास जाओ. सेकेंडली, आप जो है अगर 1 साल के अंदर अगर बैंक ने कुछ रिप्लाई कर दिया और उसके 1 साल के अंदर अगर आप ओम्बड्समैन में कंप्लेंट फाइल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप उसके बाद नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज, अगर जो है कंप्लेंट पेंडिंग है अभी तक किसी दूसरे कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में, तो आप ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते. एंड नेक्स्ट इज, इंस्टीट्यूशन कंप्लेंट अगेंस्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द बीओ स्कीम. अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंडर वो नहीं आ रहा है तो वो देखेगी ही नहीं, वो आपकी कंप्लेंट फाइल नहीं करवाएगी. अगर सब्जेक्ट मैटर उनके एम्बिट में नहीं आ रहा है तो भी वो नहीं करवाएगी. एंड इफ द कंप्लेनेंट इज फॉर complaint is for the same subject matter that was settled through the BO in any previous proceeding. तो पहले जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन ने कुछ सेटल कर दिया, उसके बाद आप वापस वही सेम मैटर लेकर के चले गए, तो वो कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती. सो दिस इज ऑल फॉर योर मॉड्यूल 2. Let us start with module 3. This is the biggest module. These are the various topics which has been covered in this module. Let's start with this topic, insurance definitions. तो कुछ की टर्म्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आप ध्यान से समझो. इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी आपकी इंश्योरर है जो इंश्योरेंस दे रही है. इंश्योर्ड, डी, इंश्योर्ड अगर आया तो ये वो पर्सन है या वो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर इंश्योरेंस लिया गया हो या जिसके लिए इंश्योरेंस लिया गया हो. तो ये याद रखना, इंश्योर्ड जो है वो पर्सन होगा या वो प्रॉपर्टी होगी जिसके लिए इंश्योरेंस लिया गया है. इंश्योरर वो कंपनी है जिसने इंश्योरेंस दिया है. अभी इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट है या पॉलिसी है इन दोनों के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, कि अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हम कर देंगे. हम मतलब इंश्योरर कर देगा. These are various functions of insurance. First one is insurance provides certainty. तो एक certainty मिल जाती है कि अगर फ्यूचर में कुछ नुकसान हुआ, कुछ अनसर्टेन सिचुएशन आ गई, तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी है जो उसकी भरपाई कर देगी. हमें प्रोटेक्शन मिलती है कि हम जो है बिंदास होकर के काम कर सकते हैं. सामने वाला है कुछ नुकसान हुआ तो वो भरपाई कर देगा. रिस्क शेयरिंग, दोनों में इंश्योरर और इंश्योर्ड में रिस्क डिवाइड हो जाता है. प्रिवेंशन ऑफ लॉस, हमारा लॉस बच जाता है. अगर फ्यूचर में, अगर मान लो हमने इंश्योरेंस नहीं लिया और फ्यूचर में पूरा पैसा डूब गया तो क्या होगा? इट प्रोवाइड्स कैपिटल, देन इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड इट हेल्प्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो ये सारे पॉइंट्स आप खुद से कर सकते हो. This is very important topic, principles of insurance. So first one is principle of utmost good faith. तो यहाँ पर गुड फेथ का मतलब बोल रहे हैं ना मैं झूठ बोलूं ना तुम झूठ बोलो, ना तुम कोई बात छुपाओ ना मैं कुछ बात छुपाऊं. तो सारी डिटेल्स आपको इधर डिस्क्लोज कर देनी है पॉलिसी लेते समय. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉस्ट. जो नियरेस्ट कॉज होता है उसको कंसिडर किया जाता है. अगर मैंने फायर इंश्योरेंस लिया है तो आग लगने की वजह से अगर डैमेज हुआ तो ही मुझे कॉम्पेंसेशन मिलेगा. अगर पानी की वजह से लॉस हुआ तो मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. तो अगर मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ तो मेरा उसमें कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए. मान लो कि मेरी फैक्ट्री है, उसको कोई और उसका इंश्योरेंस ले रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. उसमें जो है जो इंश्योरेंस ले रहा है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. तो ये प्रिंसिपल जो है ये लाइफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सारे इंश्योरेंस के लिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल है. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है पहले आप जिस सिचुएशन में थे उस सिचुएशन में आपको वापस ला करके खड़ा करना, आपके लॉस को बियर करके कंपनी जो है आपके लॉस को उठाएगी एंड आपको उतना पेमेंट करेगी. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन.
तो सब्रोगेशन का मतलब आप ध्यान से समझो, मान लो कि एक फैक्ट्री में आग लगी और आग बुझाने की कोशिश की गई, पानी डाला तो उससे जो है आग बुझ गई, बट बहुत ज्यादा लॉस हुआ। स्टिल कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम रद्दी में बेच करके कुछ पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा, अगर मान लो 5 लाख का नुकसान हो तो पूरा 5 लाख का पेमेंट नहीं करेगी, उसमें से जो रद्दी से बेच करके जो भी रिकवर हुआ है वो माइनस करके करेगी। ये जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन बोलता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो अगर मान लो एक ही प्रॉपर्टी के लिए आपने 4 जगह से इंश्योरेंस लिया है, तो वो चारों मिलकर के आपको जितना लॉस होगा उतना कंट्रीब्यूट करके दे देंगे। अगर 5 लाख का है, आपने 5 जगह से किया है, तो 500 लोग 1-1 लाख रुपए देंगे आपको। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। तो आपको जो है स्टेप्स लेने हैं कि आप अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। हाथ पे हाथ लेकर के खड़े नहीं रहना है कि हाँ नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो तो पेमेंट कर देगी। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ मींस जनरल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। Let us talk about life insurance. Life insurance provides financial protection to the policyholder's family in case of policyholder's untimely death. तो जिसने पॉलिसी ली है उसकी अनटाइमली डेथ हो गई तो फैमिली को पैसा वो देते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो आजकल जो है आप इसमें पैसे डिपॉजिट करते जाओ एंड एक टाइम के बाद, मैच्योरिटी पीरियड के बाद, वो जो है आपको इससे एक फिक्स्ड रिटर्न मिलते रहेगा। नेक्स्ट, इसमें आप अलग अलग क्लासिफिकेशन देख सकते हो, टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडाउमेंट प्लान्स एंड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन लाइफ या फिर जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस छोड़ करके बाकी जितने भी तरह के इंश्योरेंस है वो आपके जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल्स इधर दिए हैं, लाइक फायर, मेराइन, मोटर, हेल्थ, ट्रैवल, लाइबिलिटी, क्रॉप, कैटल, इंजीनियरिंग एंड अदर मिसलेनियस इंश्योरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं री इंश्योरेंस कंपनी की। तो री इंश्योरेंस क्या होता है? री इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनी। मान लो कि ए लिमिटेड एक इंश्योरेंस कंपनी है, अगर उसने ही किसी और कंपनी से इंश्योरेंस लिया तो इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो वापस से अगर इंश्योरेंस ले, वो होता है री इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस लेगी किस चीज पर? मान लो मैंने जो है एक फायर इंश्योरेंस लिया ए लिमिटेड से, अभी सेम प्रॉपर्टी के लिए ए लिमिटेड ने किसी और कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया, तो ऐसे सर्कमस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? री इंश्योरेंस बोलते हैं। टॉपिक इज रोल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो ये सेफ गार्ड के लिए ही है, बेसिकली सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम लॉस एंड अनसर्टेनिटी, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं लोग। नेक्स्ट इज स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए एंड वेल्थ बनाने के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख सकते हो। इसमें क्या है, लोगों की यही मेंटालिटी रहती है कि आज हमारे पास पैसे हैं तो हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए या फिर किसी को कुछ हो जाए तो हम जो है हमारे बाद हमारी फैमिली को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। is role of general insurance in pre and post independence period. तो ये टॉपिक आप देख सकते हो। During Mrs. Indira Gandhi, there was a split within the business community, but what maintained the momentum was the commitment of two ministers, Ashok Mehta and Subramaniam, towards liberalization of the economy. So deregulation helped the poorest and it created employment opportunities and faster growth. 1956 में क्या हुआ? LIC बनी, not only for life but for other sectors of insurance as well. Then liberalization in 1994 invited private participation, and in 1997 IRDA was set up. So LIC has more than 100 years of service, and under central government LIC has grown significantly. Because direct benefits of insurance, फर्स्ट पॉइंट इज रिस्क ट्रांसफर। तो रिस्क ट्रांसफर हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। सेकेंड इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो आपको जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, एक्सीडेंट हुआ, इलनेस हुआ, कोई भी डिसास्टर हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कर देगी। देन फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए अगर आपने कुछ
इंश्योरेंस लेकर के रखा है, तो वहां पर अगर कुछ लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पनसेट. देन प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. तो आप कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं लाइक लाइफ इंश्योरेंस है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स हैं, आप अगर उधर इन्वेस्ट करते हो अपनी सेविंग को तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं. दीज आर स्पिल ओवर बेनिफिट्स, मतलब और एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसकी वजह से जॉब क्रिएशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो एक ओवरऑल हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है. देन रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टेबिलिटी. तो लोग जो है क्या कर रहे हैं, रिस्क मैनेज कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं और स्प्रेड कर रहे हैं रिस्क को लार्ज नंबर के पॉलिसी होल्डर्स पर. मान लो कि एक ही कंपनी से अगर 20 लोगों ने पॉलिसी ली तो जरूरी नहीं है कि सबका नुकसान एक साथ होगा. तो ये जो भी रिस्क है वो ये 20 लोगों में डिवाइड हो गया, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो. नेक्स्ट इज प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप. तो लोग जो है ये रिस्क उठा पा रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी की वजह से, इसलिए जो है अपने वेंचर्स ओपन कर पा रहे हैं. नेक्स्ट इज सपोर्टिंग हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज. तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी हम इजीली अवेल कर पा रहे हैं अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी है तो, नहीं तो आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉस्टली है हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेल करना. देन डिजास्टर रिलीफ एंड रिकवरी एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर. तो आप किस तरीके से क्लेम को सेटल करोगे. सबसे पहले आप इंटीमेट करोगे इंश्योरेंस कंपनी को कि मेरा नुकसान हो गया है, फिर आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराओगे, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे, क्लेम का फॉर्म भरोगे, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ लगाओगे कि क्या लॉस हुआ है, क्या डैमेज हुआ है, एंड और भी अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी मांगती है तो वो. एंड लास्ट में क्या होगा, क्लेम इन्वेस्टिगेशन होगा, क्लेम को इन्वेस्टिगेट करेंगे सर्वेयर, लॉस को एसेस करेंगे, अगर उनको ये लगेगा कि हाँ पार्टी को पेमेंट करना चाहिए तो उनको पेमेंट हो जाएगा, अगर ये लगता है कि नहीं ये क्लेम फॉल्स क्लेम है तो वो पेमेंट रोक सकते हैं. These are various career options in insurance business: actuary, insurance broker, risk surveyor, underwriter, catastrophe modeler, and insurance loss adjuster. Last and important topic of this module is double insurance. Double insurance is a type of insurance where same subject matter is insured more than once. एक ही subject matter एक से ज्यादा बार अगर insure हुआ तो इसको हम बोलते हैं double insurance. फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एक फैक्ट्री है, उसी का आपने ए कंपनी से और बी कंपनी से सेम फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस लिया दो अलग अलग कंपनी से, तो ये क्या हो गया, डबल इंश्योरेंस हो गया. तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, वो प्रिंसिपल ऑफ सबरोकेशन अप्लाई होता है कि अगर लॉस 5 लाख का हुआ तो दोनों कंपनी 5 लाख पेमेंट नहीं करेगी, दोनों मिलकर के 5 लाख का पेमेंट करेंगी. Let us move to the last module, that is regulatory aspect of insurance and bancassurance. These are the various topics covered: Insurance Act, IRDA Act, bancassurance, and benefits and drawbacks of bancassurance. Let us start with the first topic, that is Insurance Act 1938. So Insurance Act, it was originally passed in the year 1938, but इसके बाद बहुत सारे amendments हुए. IRDA ने खुद इसमें amendments किए. एंड पहले जो फंक्शन इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू परफॉर्म होते थे अभी IRDA एक्ट के थ्रू परफॉर्म होते हैं. कुछ फंक्शंस जो पहले परफॉर्म करती थी इंश्योरेंस एक्ट वो थे लाइसेंस इशू करना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना, मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड लेइंग डाउन नॉर्म्स. So these are various provisions, these are various functions. First one is registration. तो ये हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए कंपलसरी था कि उनके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो एनुअली उनको रिन्यू कराना है. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये क्राइटेरिया था कि उनका पेड अप कैपिटल एटलीस्ट 100 करोड़ का होना चाहिए और री इंश्योरेंस बिजनेस के लिए 200 करोड़ मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए. एंड एवरी इंश्योरेंस कंपनी हैज टू डू मिनिमम इंश्योरेंस बिजनेस इन रूरल और सोशल सेक्टर एज में बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर. उनको जो है रूरल और सोशल सेक्टर में भी काम करना है, ये रिक्वायरमेंट थी. नेक्स्ट, जो पॉलिसी सेल करते हैं उन एजेंट्स के लिए भी लाइसेंस ऑब्टेन करना ये कंपलसरी है. ये जो एजेंट्स है ये साउंड माइंड होने चाहिए, कन्विक्टेड या क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग ऑफ सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसर्स. तो जो सर्वेयर है उनको भी लाइसेंस लेना है, जो लॉस एसेसर्स है उनको भी लाइसेंस ऑब्टेन करना है.
So no insurer can settle any claim equal to or exceeding rupees 20,000 without the report on the loss from a licensed surveyor. तो 20,000 के नीचे का अमाउंट है तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली सेटल कर सकती है, लेकिन अगर उसके ऊपर का है तो सर्वेयर या लॉस असेसर जो है वो एक अपनी रिपोर्ट बना करके देंगे, उसके बेसिस पर ही ये सेटलमेंट होगा. Person can act as a surveyor or loss assessor only after obtaining license from the authority. अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप सर्वेयर या लॉस असेसर की तरह काम कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्वेंसी मार्जिन. तो इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट में ये जो है लिखा हुआ है कि असेट जो है लाइबिलिटी से कितनी ज्यादा होनी चाहिए, ये आपका सॉल्वेंसी मार्जिन में बताया गया है. नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ प्रीमियम बिफोर अजम्पशन ऑफ रिस्क. तो पहले रिस्क कैलकुलेट किया जाता है, उसके बेसिस पर प्रीमियम निकाला जाता है और फिर प्रीमियम का कॉन्टिन्यूस पेमेंट होना चाहिए. अगर पेमेंट आपने नहीं किया प्रीमियम का, उसमें डिफॉल्ट किया, तो इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर सकती है कि मैं जो है आपका क्लेम सेटल नहीं करूंगी. आईआरडीए एक्ट. तो आईआरडीए जो है अभी सुप्रीम अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस बिजनेस को चला रही है इंडिया में. ये स्टैब्लिश हुई थी 1999 में आफ्टर द डिक्लेरेशन मेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी ऑन इंश्योरेंस लॉज ऑर्डिनेंस ऑफ 2014. नेक्स्ट जो है आप देखो इंश्योरेंस, ये आईआरडीए वाज स्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय मल्होत्रा कमिटी इन इट्स रिपोर्ट एंड द कमिटी वाज हेडेड बाय मिस्टर आर.एन. मल्होत्रा. ये रिटायर्ड गवर्नर थे. इस कमेटी को ये आर.एन. मल्होत्रा हेड कर रहे थे एंड रिपोर्ट जो है इन्होंने दी थी. It was finally set up at New Delhi on April 2000, but later on it was shifted to Hyderabad, Telangana in 2001. तो ये आपको ध्यान रखना है. The main recommendation made by this committee was to allow entrance of private sector companies and foreign promoters and independent regulatory authority for the insurance sector in India. इनका main recommendation यही था कि private companies को, foreign promoters को, इनको भी आप enter करने दो insurance sector में. Who is the current chairman of IRDA India? Mr. Debashish Panda joined on 14th March 2022, and the objectives of IRDA are mentioned here: to carry forward the interest of the policy holders, to uphold the development of the insurance industry, to ensure speedy resolution of claims को बहुत ज़्यादा समय तक लटकाना नहीं है, then to prevent frauds and malpractices, and to ensure fair conduct on the part of financial market and transparency when dealing with insurance. These are the latest amendments. You can just read it out and study it properly. नेक्स्ट टॉपिक इज बैंक का अश्योरेंस. तो अभी बैंक का और अश्योरेंस ये दो टर्मिनोलॉजीज है. बैंक अगर इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी बेच रही है तो उसको हम बैंक का अश्योरेंस बोलते हैं. बैंक का अश्योरेंस मीन्स सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू बैंक्स. सो बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी दे कम अप इन पार्टनरशिप व्हेन wherein the bank sells the tied insurance companies इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू इट्स क्लाइंट. तो बैंक अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस कंपनी के वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करती है. बैंक का इंश्योरेंस arrangement benefits both the firms. On one hand, bank earns fee amount from the insurance company, whereas on the other hand, the insurance firm increases its market reach and customers. तो यहाँ पर बैंक को फी मिल जाती है इंश्योरेंस कंपनी से और इंश्योरेंस कंपनी को क्लाइंट्स मिल जाते हैं. द बैंक एक्ट एज इंटरमीडियरी and the bank assurance agent is a bank or financial institution licensed by the Tanzania Insurance Regulatory Authority TIRA to conduct bank assurance business. तो ये आप ध्यान रखो. These are various regulations of bank assurance. Bank assurance agents may act for a minimum of 3 and maximum of 10 insurers. तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 इंश्योरेंस हो सकते हैं. देन बैंक अश्योरेंस एजेंट्स आर टू अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर इंश्योरेंस फॉर अ लाइसेंस टू कंडक्ट बैंक अश्योरेंस बिजनेस. तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए. वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी एंड एनुअल लाइसेंस फी, मेंटेनेंस फी है. देन बैंक अश्योरेंस एजेंट्स हैव टू मेंटेन द मिनिमम कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006. इसके अकॉर्डिंगली उनको मिनिमम कैपिटल मेंटेन करनी है. ये एजेंट्स bank assurance agents are to issue non-life policies within 10 days from the date of payment of premium to the insurer. तो अगर हमने प्रीमियम पे कर दिया उसके 10 दिन के अंदर इनको हमें क्या करना है, इंश्योरेंस पॉलिसी दे देनी है. एंड द लाइफ इंश्योरेंस के केस में 20 डेज की रिक्वायरमेंट इधर दी हुई है. Then insurers shall work jointly with the bank assurance agents to settle any complaints which arise as a result of a fault in the provision of the bank assurance business. तो अभी जो है
ये बैंक का इंश्योरेंस एजेंट्स क्या कर सकते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ ज्वाइन होकर के कुछ भी क्वेरीज आ रही, कुछ भी डिफॉल्ट हुआ है, कुछ भी क्लेम, कुछ भी कंप्लेंट है, उसको सेटल कर सकते हैं। ये कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जिन केसेस में लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है बैंक का इंश्योरेंस एजेंट का। नॉन रेमिटेंस ऑफ प्रीमियम, देन फेलियर टू फर्निश टू टीरा एनी इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, फाइनेंशियल रिटर्न नहीं सबमिट किया, कंप्लेंट्स को रिजॉल्व नहीं किया, इंस्पेक्शन नहीं किया, या फिर कुछ भी किसी को थ्रेटन किया, डराया धमकाया, या रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक किया, ऐसे सिचुएशन में उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ बैंक का इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आप देखो ये कस्टमर्स को एनकरेज करते हैं कि आप पॉलिसीज लो। नेक्स्ट, पीपल जो अवेयर नहीं है पॉलिसीज के बारे में, उनको भी पता चल सकता है इंश्योरेंस बेनिफिट्स के बारे में और वेरियस स्कीम्स के बारे में। नेक्स्ट, अभी जो है प्रोवाइडर्स अगर बढ़ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो कस्टमर को फायदा होगा, उन्हें प्रीमियम रेट्स अच्छे मिलेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ बैंक का इंश्योरेंस, तो डेटा मैनेजमेंट मुश्किल होगा, क्योंकि अभी बैंक के थ्रू भी मैनेज करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू भी मैनेज करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है बैंक और इंश्योरेंस पॉलिसी के बीच में, एंड बहुत सारी बैंक जो है जो अच्छी कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, तो उनकी वजह से भी इंश्योरेंस कंपनीज का नाम वो खराब हो सकता है। देन बैंक का इंश्योरेंस कंपनीज, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. So students, I've covered all the modules. I hope you have learned something from this video. If you have learned something, please do like, subscribe and share this video to others so that they can also study and prepare for their exam. All the best for your exam. Have a good day. Bye.